ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ پھر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے جسم کی طرف دیکھنا بند کر کے اپنی ساری توجہ اس کے چہرے اور خاص طور سے آنکھوں کی طرف مبذول کر لی۔ وہ مسکرایا اور ایک دم اس نے میری طرف چھلانگ لگائی۔ 2 قدم دوڑ کر وہ کسی پرندے کی طرح ہوا میں بلند ہوا اور اسے لگاتار ککس میرے چہرے پر مارنے کی کوشش کی۔ دیکھنے میں یہ وار بظاہر شاندار اور خطرناک لگتا ہے، لیکن اس کی افادیت حریف کو ذرا ڈرانے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے کلائیوں پر اس کے پیروں کے وار روکے اور وہ زمین پر اتر گیا۔ میں دفاع کرتے ہوئے پسپا ہوتے ہوتے دیوار تک چلا گیا تھا۔ زمین پر اترتے ہی اس نے اچھل کر لات میرے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ پیچھے ہٹتے یا نیچے ہو کر اس کے وار سے بچنے کی گنجائش نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے یہ وار بھی کلائی پر روکنا پڑا۔ گھومتی ہوئی لات سے وار کی طاقت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ میں لڑکھڑا کر بائیں طرف گیا۔ پہلو میں سوئے ہوئے درد نے انگڑائی لی۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ اسے بجلی کیوں کہا جاتا تھا۔ فرش پر اترتے ہوئے اس کا رخ مخالف سمت میں ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، اس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیک کر 2 لتی سی چھاڑی۔ ایک ایڑی عین درد کے مقام پر لگی اور درد کا افریت دھاڑ مار کر مجھے اندر سے نوچنے کھسوٹنے لگا۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ الیکٹرک نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کا داؤ مؤثر تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ میری چیخ نکل جاتی۔ میں نے پہلو سے ہاتھ ہٹا کر اپنا کمزور حصہ اس سے چھپانے کی کوشش کی، مگر اس نے بھانپ لیا تھا۔ وہ مانی کے انداز میں سر ہلانے لگا۔ دوست، لگتا ہے تم پہلے بھی چوٹ کھائے ہوئے ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا اور یکدم اس کے گھٹنے پر ٹھوکر ماری۔ وہ ٹھوکر نہایت صفائی سے بچا گیا، مگر ساتھ ہی میں نے الٹے ہاتھ سے اس کے شانے پر وار کیا۔ وہ لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے چلا گیا۔ اس نے حیرت سے دیکھا۔ تم بھی لڑنے کا فن جانتے ہو دوست؟ میں گہری سانس لے کر درد پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ الیکٹرک پھر پیروں کے بل تھرکنے لگا۔ بظاہر میرے وار کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگلا حملہ اس نے میرے کمزور پہلو پر ہی کیا۔ میں اس کی توقع کر رہا تھا، اس لیے اس کے مشین کی طرح برسنے والے گھونسوں سے کامیابی سے دفاع کیا اور اس اسنا میں وہ اصل وار کر گیا۔ اس کی سیدھی لات میرے بائیں گھٹنے پر لگی اور میں زمین بوس ہو گیا۔ درد کی ایک بار پھر قیامت برپا ہو گئی تھی۔ میں فرش پر کلابازیاں کھا کر الیکٹرک سے دور ہوا، پر نہ اس کی لات پسلی پر لگتی۔ تکلیف کی شدت سے میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ الیکٹرک نے ایک بار پھر دھوکہ دیا۔ اس نے یہ وار بھی نمائشی کیا تھا، اور جب میں سدے ہوئے بندر کی طرح کلابازیاں کھا کر سیدھا ہوا تو اس نے نہایت پھرتی سے اس مقام پر دوبارہ وار کر دیا۔ جوتے کی نوک میری پسلیوں پر لگی۔ ایسا لگا جیسے میرے اندر آتش فشاں پھٹ گیا ہو۔ میری آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ میں نے پہلو کو تھاما تو میرا ہاتھ نم اور گرم شہ سے بھر گیا تھا۔ میرے پہلو سے خون بہہ نکلا تھا۔ درد نے ہاتھ پیروں کی جان نکال دی تھی۔ میں چاروں ہاتھوں پیروں کے بل زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تماشائیوں کے شور نے ارینا سر پر اٹھا لیا تھا۔ ان میں زیادہ تر لوگ میری موت کے خواہاں تھے۔ جانگرے اور چند لوگ جنہوں نے مجھ پر شرط لگائی تھی، میری فتح چاہتے تھے، لیکن کسی ہمدردی کے بنا پر نہیں، بلکہ مالی مفاد کے لیے۔ بے اختیار مجھے کاجل یاد آئی۔ وہی اس دنیا میں ایک ہستی تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا۔ الیکٹرک کسی چیتے کسی خاموشی اور سرد مزاجی سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا شکار زخمی ہو کر اس کے سامنے بھی یاروں مدکار پڑا تھا اور وہ اس پر فیصلہ کن وار کرنے پر غور کر رہا تھا۔ مجمع اسے چیخ چیخ کر میرے قتل کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو تماشائیوں کی طرف دیکھا، پھر ذرا پیچھے ہٹا، پھر اس نے گویا فضا میں پرواز کی۔ اس کا دایاں پاؤں وار کا مہلک انداز بناتے ہوئے میری گردن کی طرف آ رہا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ یہ وار میری گردن پر لگتا اور یوسف علی خان کی کہانی ختم ہو جاتی۔ درد کے باوجود میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات تھی کہ بازی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بے شک میں ناز و نہم سے پلا تھا۔ دنیا جہاں کی ہر آسائش میں نے دیکھی اور برتی تھی، اس کے باوجود بے شمار آزمائشوں اور سختیوں سے گزرا تھا۔
कभी इनसे हारा नहीं था, कभी आजमाइशों से मुंह नहीं मोड़ा। ये कैसे मुमकिन था कि मैं इतनी आसानी से हथियार डालकर खुद को मौत के हवाले कर देता? ऐसा करना मेरी तरबियत ही नहीं, फितरत के भी खिलाफ था। अजीब बात थी कि यह ख्याल आते ही मेरे दर्द में जैसे कमी आने लगी थी और ज़हन पर तारी होने वाली धुंध छट रही थी। अलेक्टी के दाएं पांव की एड़ी का हदफ मेरी गर्दन थी। इसकी एड़ी के अक्म में उसके जिस्म की तमाम तर ताकत थी। अगर ये वार किसी भैंसे की गर्दन पर पड़ता तो उसे भी तोड़ कर रख देता। मेरी हैसियत ही क्या थी उसके सामने। मेरी पूरी तवज्जो उसकी एड़ी की तरफ थी। जैसे ही वो मेरे पास आया, मैं उठने के बजाय फर्श पर गिर गया। पांव जन से मेरे पास से गुजर कर फर्श पर लगा। अलेक्टिक के दूसरे पांव का घुटना मेरी पुश्त पर लगा, लेकिन इसकी पोजीशन वार करने वाली नहीं थी। मैंने इलेक्ट्रिक के फर्श पर लगने वाले पांव के गिर्द अपना बाजू हायल किया और उल्टी समत में पलट गया। वार खाली जाने की हैरत ने इलेक्ट्रिक को चंद लम्हे के लिए सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा था। मैंने इस लम्हाती गफलत से फायदा उठाया। उसकी पिंडली खड़े जिस्म के बोझ और फर्श की सख्ती के दरमियान आ गई और जब इस पर मेरे जिस्म का बोझ पड़ा तो इलेक्ट्रिक अपनी पिंडली को टूटने से बचाने के लिए तेजी से फर्श की तरफ गिरा, लेकिन मेरे घूमने की रफ्तार कहीं तेज थी। फिजा में सूखी लकड़ी चटकने जैसी आवाज आई। इलेक्ट्रिक के हल्क से हल्की सी कराह निकली और वो उलट कर फर्श पर जा गिरा। अपना सर उसने बहरहाल बचा लिया था, वरना ये चोट उसे हलाक ना भी करती तो होशा हवास से बेगाना जरूर कर देती। जमीन पर गिरते ही उसने तड़प कर बाएं लात चलाई जो मेरे शाने पर लगी, लेकिन इस वार में ज्यादा दम नहीं था। इसके अगले वार से पहले ही मैंने उसकी दाईं टांग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और एक बार फिर करवट बदली, पहली करवट से उल्टी समत में। इलेक्ट्रिक के मुंह से इस बार भी चीख निकली थी। पिंडली की दोनों हड्डियां वाज़ेह तौर पर टूट गई थी। यह फैसला कुन दाव था। मैं इसे छोड़कर दूर हो गया। जब मैं फर्श से उठा तो इलेक्ट्रिक दोनों हाथों से अपनी टूट जाने वाली हड्डी पकड़े हुए था। चीख निकलने का अमल बेइख्तियार था, लेकिन अब उसके चेहरे पर तकलीफ के मामूली से आसार भी नहीं थे। मेरे दाएं पहलू से लहू बह रहा था। इलेक्ट्रिक की किक ने अंदर से गोश्त फाड़ दिया था। इसकी तकलीफ थी, लेकिन वो जो मुझे अंदर से दर्द काट रहा था खासा कम हो गया था। मैंने टी शर्ट उठाकर देखा, फटे हुए जख्म से खून के साथ एक पिलाट माइल मादा भी बह रहा था। शायद यही वो जहर था जिसने मुझे बेचैन कर रखा था। किक लगने से गोश्त फटा और इसमें फंसा हुआ जहरीला मवाद खून के साथ बह गया। शर्ट नीचे करके मैंने इलेक्ट्रिक की तरफ देखा। वो मेरा हरीफ तो था ही, लेकिन साथ ही मौसिन भी था। बेशक उसने अनजाने में मेरी मदद की थी, इसकी वजह से मुझे दर्द से निजात मिली थी। वो अपना पैर थामे फर्श पर बैठा था और उसके चेहरे पर हस्बे मामूल एक सपाट सा तासुर था। अलबत्ता आंखें जो मुझ पर मरकूज थी सवाल कर रही थी क्या मैं इसके साथ क्या सलूक करूंगा। सिर्फ सवाल था, इसने रहम की अपील नहीं की थी। बेइख्तियार मेरे अंदर उसके लिए एहतराम उभरा। मैं मुस्कुराया। तो क्या तुम अब भी मुझसे मुकाबला करने के ख्वाहिशमंद हो? उसने अपनी टूटी हड्डी की तरफ देखा। इसके साथ मैं कैसे लड़ूंगा? तमाशा बनकर लड़ना मुझे गवारा नहीं है। अगर तुमने मुझे मारने का इरादा कर लिया है तो फौरी तौर पर इस पर अमल कर गुजरो। मजमा जो अब तक बाजी पलटने पर दम बखुद था, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो एक आवाज होकर इलेक्ट्रिक को कत्ल करने का मुतालबा कर रहे थे। मुझ पर शर्त लगाने वाले जीतने की खुशी में सरशार ये मुतालबा कर रहे थे, लेकिन लोग जिन्होंने इलेक्ट्रिक की फतेह पर शर्त लगाई थी अपनी हार को इलेक्ट्रिक के खून से रंगना चाहते थे ताकि हार की बेकैफी कुछ कम हो। वो लोग मुश्ताइल थे। मैंने इंसानी खून के शायक इन इंसान नुमा दरिंदों को हकारत से देखा। इस दौरान में अनाउंसर काउंट डाउन कर रहा था। जब 12 तक गिनती के बावजूद इलेक्ट्रिक अपनी जगह से नहीं उठा तो मुझे इख्तियार दिया गया कि मैं चाहूं तो इसे मुआफ कर दूं या कत्ल कर दूं। साथ ही राय आमा के मुतालबे को पेश नजर रखने का मशवरा दिया गया। मैंने हकारत से जवाब दिया, मैं आबपाशी करता हूं तुम्हारे इख्तियार पर और इस राय आमा पर। मैं इलेक्ट्रिक को मुआफ करता हूं। बेशक ये एक बहादुर दुश्मन है और मैं इसका एहतराम करता हूं। जो लोग मेरी बात सुन सके और उन्होंने इसे समझा, इनके चेहरों के जाविये पे कर गए थे। ये बेलगाम मगरूर अमीर जाते थे। दौलत इनके घर की लौंडी थी और उसकी ताकत के बल बोते पर वो खुद को खुदा समझने लगे थे। इन फरोनों को आज तक किसी ने ऐसा दंदान शिकन जवाब नहीं दिया था। इसलिए मैं दरवाजा खुला और गार्ड्स जारहाना अंदाज में एरिना में दाखिल हुए। उन्होंने राइफलें तान रखी थी। मुझे दोबारा हथकड़ी पहनाई गई। जब मुझे दरवाजे के अंदर ले जाया जा रहा था तो दूसरे दरवाजे से स्ट्रेचर उठाए पैरामेडिक एरिना में दाखिल हो रहे थे। मैंने दरवाजा बंद होने से पहले इलेक्ट्रिक को देखा और मुस्कुरा कर हाथ हिलाया। वो भी पहली बार मुस्कुराया। इसके साथ ही दरवाजा बंद हो गया था। अंदर आते ही गार्ड्स का सख्त रवैया नरम हो गया था। एरिना में गालबन वो तमाशाइयों को दिखाना चाह रहे थे कि इनकी ख्वाहिश न मानने वालों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मुझे ड्रेसिंग रूम में लाया गया जहां एक डॉक्टर और एक नर्स मेरे मुंतजिर थे। डॉक्टर भी श्रीलंकन था, लेकिन नर्स यूरोशियन थी। इसके रगों में किसी सफेद वाम के अलावा मशरकी बाईद की किसी नस्ल का खून भी शामिल था। मेरा ज़ाती तजर्बा भी यही रहा है कि दुनिया की दिलकश तरीन औरतें सफेद वाम और मशरकी बाईद के खून के मिलाप से वजूद में आती हैं। जब अमेरिकी और फ्रांसीसी मशरकी बाईद के मुल्कों में बरसे बेकार थे तो एक तरफ तो इनकी सिपा
कम्युनिज्म का नारा लगाकर मकामी लड़कों का कत्ले आम कर रही थी, तो दूसरी तरफ फौज के जवान मकामी औरतों को नाजायज बच्चों के तोहफे दे रहे थे। जंग वियतनाम के फातेह और थाईलैंड की माईशत सुधरने के बाद इस खित्ते में यूरेशियन बच्चों की पैदाइश में खासी कमी आई और एंग्लो इंडियन की तरह ये नस्ल भी रफ्ता रफ्ता नापैद हो रही थी। नर्स ने पहले मेरी कमीज उतारी, डॉक्टर ने जख्म का मुआयना किया और किसी कदर फिक्रमंद होकर सर हिलाया। पीला मादा अब भी निकल रहा था। उसने मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा, फिर रुई से जख्म साफ करके इसका मुआयना किया। तुम इतने खौफनाक जख्म के साथ लड़ते रहे? उसने हैरत से पूछा। ये जख्म तो अभी लड़ाई के दौरान लगा है, मैं बाहर के नहीं अंदर के जख्म की बात कर रहा हूँ। इसमें जहरीला मवाद बन रहा है। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने अपने बैग से सर्जरी के औजार निकाले। नर्स ने अपने सुबह हाथों से जख्म को मुकम्मल तौर पर साफ किया। डॉक्टर ने मुझे जख्म सुन करने वाला इंजेक्शन लगाया और अपने औजार संभाल कर जख्म पर झुक गया। बकरमा सिंह भी मौजूद था और फिल वक्त नर्स में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, जो उसकी कुर्बत से बेनियाज पूरी तनदही से डॉक्टर की मुआवनत कर रही थी। डॉक्टर ने मुश्किल से निस्फ घंटे में ऑपरेशन करके अंदर रह जाने वाले बाकी जहरीले मवाद को भी बाहर निकाल दिया और जख्म की मरहम पट्टी कर दी। साथ ही अपनी हैरत का इजहार भी किया। समझ में नहीं आता, अंदर इन्फेक्शन के आसार नहीं मिले, फिर ये जहर पैदा कैसे हुआ? मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इसे क्या बताता कि यह जहर पैदा नहीं हुआ बल्कि बैरूनी जराए से जबरदस्ती मेरे जिस्म में दाखिल किया गया था। सर्जरी के बाद उसने टांके लगाए, मुझे 2 अदद इंजेक्शन मजीद लगाए और जख्म को 4 दिन पानी से महफूज रखने को कहा। बकरमा सिंह ने मुझे ऑरेंज जूस दिया जो मैंने बिला खतर पी लिया। फिर रशियन नर्स ने मुझे लिबास पहनाना चाहा लेकिन मैंने रोक दिया। शुक्रिया, 6 साल की उम्र से अपना लिबास में खुद तब्दील कर रहा हूँ। मेरा अपना लिबास खासा मैला हो चुका था, इसलिए मैंने इसकी बजाय ड्रेसिंग रूम की अलमारी से 1 अदद ट्राउजर और टी शर्ट निकाल कर पहनी। ड्रेसिंग रूम में आते ही गार्ड ने मेरी हथकड़ी उतार दी थी। ऑपरेशन के लिए लगाए जाने वाले सुन कर देने वाले इंजेक्शन से रही सही तकलीफ भी खत्म हो गई थी। दरहकीकत ऑपरेशन और जख्म की तकलीफ भी इससे दर्द का पासिंग नहीं थी जो इन लोगों के लगाए इंजेक्शन से हुई थी। ऐसा करते वक्त वो भूल गए थे कि फैसला करने वाली हस्ती कोई और है। वो चाहे तो दुश्मन की तरफ से किया जाने वाला वार भी जान बचाने का सबब बन जाता है। अलेक्टिक ने अपने तौर पर मेरे कमजोर पहलू पर वार किया था। उसके जूते की सख्त एड़ी ने इस जगह से गोश्त फाड़ दिया था और अंदर जमा होने वाला जहरीला मवाद खून के साथ बह गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। लिबास तब्दील करके मैंने बकरमा सिंह को आवाज दी, साहब मुझको आपके जीतने की बेहद खुशी हुई है। उसने बाछें फैलाते हुए बताया, आप कहें तो मैं आपकी मालिश कर दूं। तुम्हारा शुक्रिया बकरमा। मैं नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हारी ये खिदमत फरामोश नहीं करूंगा। उसने सर्द आह भरी, साहब अपनी जिंदगी में बस यही एक खुशी रह गई है, आप जैसे लोगों की खिदमत करके और बातें करके दिल बहला लेते हैं। मैंने अपना पर्स खोला, इसमें $150 पड़े थे। बैरी जहाज पर हमें डॉलर्स की सूरत में तनख्वाह मिलती थी। मैंने ये सारी रकम बकरमा सिंह की तरफ बढ़ा दी। ये रख लो यार। नहीं साहब, मैंने इसलिए आपकी खिदमत नहीं की। मैं जानता हूँ दोस्त, पर मैं भी मुआवजा नहीं दे रहा। मैं खुश हूँ और अपनी खुशी में तुम्हें भी शरीक कर रहा हूँ। काश मेरे पास इससे ज्यादा होते। देखो, इनकार मत करना। उसने बड़ी अकीदत से ये नोट लेकर अपनी जेब में रख लिए। साहब, इससे पहले साहब लोगों ने सैकड़ों बार बख्शिश तो दी, पर किसी ने मोहब्बत से कुछ नहीं दिया। इन लोगों के पास मोहब्बत और इंसानियत ही तो नहीं है। कार्ज ने अंदर झांका, तुमने अब चलना है हमारे साथ? चलो, मैं तैयार हूँ। लिफ्ट से ऊपर आए तो नाइट क्लब के हंगामों में मजीद इजाफा हो गया था। 2 बजे थे और ये रौनकों के अरूज का वक्त होता है। एक गोशे में चंद लड़कियां डांस कर रही थीं। एक जमाना था कि ये शो सिर्फ खटिया तर्ज के नाइट क्लब्स में होता था, लेकिन जब उसने बेपनाह बिजनेस शुरू किया, अच्छे मायार के नाइट क्लब्स ने भी स्ट्रिपटीज शोज शुरू कर दिए। अब यह हाल है कि हर नाइट क्लब में इस किस्म के शोज हो रहे हैं। हत्ता कि वो क्लब जो अपने बावकार माहौल के लिए मशहूर थे, इन्होंने भी कमाने के लिए और यहाँ शोज शुरू कर दिए। बाहर खुली फिजा में आकर मैंने जरा सुकून महसूस किया। अंदर अगरचे ताज़ा हवा की फराहमी का मुकम्मल इंतजाम था, लेकिन फिर भी मुझे घुटन महसूस हो रही थी। इस जजीरे पर किसी कदर गर्मी होती थी, लेकिन ये चुभने वाली गर्मी नहीं थी। यानी ये जजीरा खित्ते इस्तवा से फासले पर था। रात को मौसम बेहद खुशगवार हो जाता था। कार से मुझे अकबी हिस्से में बिठाया, मगर इस बार मेरे हाथ जीप के एंगल से नहीं बांधे गए थे। जीप फराटे भरती रवाना हो गई, लेकिन खिलाफ तवक्का इसका रुख सेल्फ 4 की तरफ नहीं था। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने किसी कदर फिक्रमंद होकर सोचा। फिर यह ख्याल जहन से झटक दिया कि जो होगा देखा जाएगा। जीप इस रास्ते की तरफ जा रही थी जो बंदरगाह की तरफ निकलता था। अब सड़क के दोनों जानिब जंगल था। घनी झाड़ियों के दरमियान नीम तारीकी में सिर्फ जीप के हेडलाइट्स की रोशनी थी। जिस तरह मेरे जहन में दूर दूर तक किसी वाक़े का इम्कान नहीं था, इसी तरह दोनों निगरानों को भी नहीं था। लेकिन होने वाला वाक़या होकर रहता है, चाहे इंसान इस पर सोचे या ना सोचे। अचानक जीप लहराई। हल्के से धमाके ने बताया कि इसका कोई पहिया
पंक्चर हो चुका है। ड्राइविंग सीट पर बैठे निगरान ने कमाल महारत से ब्रेक लगाकर जीप को काबू किया, वरना वो जिस तरह बेकाबू हुई थी झाड़ियों में भी घुस सकती थी। जीप रोककर उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। लानत हो, अब पंक्चर भी लगाना पड़ेगा। मेरे साथ बैठे निगरान ने सर्द आह भरी। इसीलिए मैंने महसूस किया कि ड्राइविंग सीट पर बैठे निगरान को हल्का सा झटका लगा और वो गैर फितरी अंदाज में साकित हो गया था। इसके साथ ही कोई इस तब्दीली का एहसास नहीं हुआ था। वो नीचे उतरकर झुककर पंक्चर हो जाने वाले टायर को देख रहा था, फिर इसे सीधा होना नसीब नहीं हुआ। वो झुके झुके ही नीचे लुढ़क गया और फौरन ही साकित हो गया। मेरे तजर्बे ने बताया कि वो किसी फायर का शिकार नहीं हुए थे। अव्वल तो गोली जब जिस्म में उतरती है तो उसकी आवाज आती है, और बेशक गोली बराह रास्त दिमाग में भी उतर जाए तो इंसानी जिस्म निज़ा के आलम में फड़कता है, जबकि वो दोनों अचानक साकित हो गए थे। मेरी छठी हिस्स ने खबरदार किया कि ये कोई बेहोश करने वाला बुलेट था जो इन दोनों के जिस्मों में उतार दिया गया था। अगर इस खुली जीप में छुपने की गुंजाइश नहीं थी। दूसरे निगरान के गिरने के बाद एक ऐसी आवाज आई कि मैं जख्म की परवाह के बगैर छलांग लगाकर जीप से उतरा और आवाज की समत भागा। एक हेवला झाड़ियों से बरामद हुआ था कि मैं उससे लिपट गया। ये उबैद सलाह था। उसने हल्के से मेरा नाम पुकारा था। वो भी गर्म जोशी से मुझसे लिपट गया था। उस रवायती अरबी अंदाज में मेरे रुखसारों पर बोसे दिए। कहाँ था मेरे यार, एहतियात से, तेरा जख्म न गड़बड़ कर जाए। उसने मुझे रोका। तुम्हें पता है, मुझे हैरत हुई। यह मुकाबला जजीरे के टीवी नेटवर्क पर दिखाया गया था। उसने बताया, मैंने भी देखा था। तुम गायब कहाँ थे? तो उसने मेरा सवाल नजरअंदाज कर दिया। ज्यादा वक्त नहीं दोस्त, मुझे कुछ खास बातें करना है। अव्वल ये कि जान गिरे पर हरगिज भरोसा न करना। वो हरामजादा तुम्हें अपने किसी मफाद में इस्तेमाल करेगा और फिर मरवा देगा। इस पर तो मैं कभी एतमाद नहीं कर सकता। फिल वक्त मजबूर हूँ दूसरे इसके साथ रहकर ये देखना कि वो तुमसे चाहता क्या है। इसका मकसद हमारे इल्म में आ जाए तो अगली कार्रवाई हमारे लिए आसान रहेगी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो इस जजीरे पर इतना बेबस और लाचार भी नहीं था। इसके हामी और मददगार मौजूद थे। उबैद, तुम क्या चक्कर चला रहे हो? क्या तुम्हारे मददगार मौजूद हैं? वो मुस्कुराया तो नीम तारीकी में भी उसके दांत साफ नजर आए थे। वो जवाब देने के बजाय हरकत में आया। उसने बेहोश होने वाले निगरानों को जीप के अकबी हिस्से में मुंतकिल किया और ड्राइविंग सीट पर बैठा। मैं इसके बराबर में आ गया। कहाँ जाना है? मैं इन्हें सड़क से हटा रहा हूँ। इस जगह अक्सर गाड़ियां आती जाती रहती हैं। उसे जीप स्टार्ट की। कुछ दूर जाकर उसने जीप कच्चे में उतार दी। तुम्हें पता है ये लोग पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम इस तरह खुलेआम घूम रहे हो। वह हंसा, मर्द घरों में नहीं बैठ सकते। अगर मुझे जान इतनी ही प्यारी होती तो इन लोगों से क्यों कर टकराता। और तुम फिक्र ना करो, पिछले 10-12 दिन में मुझे इन लोगों की खासी खामियां पता चली हैं। इन लोगों का हिफाजती सिस्टम इतना सुपर नहीं है जितना ये जाहिर करते हैं। देख लो, मैं न सिर्फ इनसे महफूज हूं बल्कि मैंने अपने हामी भी तलाश कर लिए हैं जो इन लोगों की तबाही में मेरा साथ देंगे। क्या इस जजीरे पर इनकी तबाही इतनी आसान है? वो मुस्कुराया। पता है, मैंने जजीरे का पावर हाउस तलाश कर लिया है और अब मुझे वहां तक रसाई का रास्ता तलाश करना है। जिस दिन मैंने ये काम कर लिया इस दिन जजीरा तबाह हो जाएगा। इन लोगों ने यहाँ पर एटमी बिजली घर बना रखा है। ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं जहन में भी यही ख्याल आया था। इतने दूर दराज इलाके में रवायती बिजली घर बनाना मुश्किल भी होता और महंगा भी। एटमी बिजली घर छोटा और सस्ता पड़ता है। इसके लिए बार बार ईंधन लाने का मसला भी नहीं होता। यही एटमी बिजली घर इनकी तबाही का सबब बनेगा। उबैद सलाह ने पुरयकीन लहजे में कहा, क्या जान करे मुझे किसी माली मफाद के सिलसिले में इस्तेमाल करना चाहता है? मैंने पूछा। जाहिर है इनका दीन ईमान ही पैसा है। इस सूरत में मुझे वापस जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास ही ना ठहरते हो? उसने नफी में सर हिलाया। अभी तो वो मेरी तलाश में इतने सरगर्म नहीं है, लेकिन तुम गायब हो गए तो तलाश जोरों शोर से शुरू हो जाएगी। इससे मेरी सरगर्मियों में खलल पड़ेगा और दूसरी हमें माली वसाइल की भी तलाश है। इन लोगों के खिलाफ जंग के लिए बहुत बड़ी मिकदार में जर दरकार है। इसके लिए हमारा जान गरे का साथ देना जरूरी है। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा कोई ना कोई साथी तुम्हारे साथ मौजूद रहेगा। ये कोई मसला नहीं है, इसे मेरी भी जंग समझो। जानगरे सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा और पूरी इंसानियत का मुजरिम है। इसे कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उबैद सलाह खुश हो गया। दोस्त, अब वक्त नहीं है। मैं तुम्हें इन दोनों और जीप के साथ फिर उसी जगह छोड़ देता हूँ। जीप पंक्चर पहिए के बावजूद आराम से चल रही थी। तुमने यहाँ पर केले बिछाई हैं? मैंने पूछा। हाँ, मुझे मालूम था कि ये लोग अब तुम्हें जानगरे के पास ले जाएंगे, इसलिए मेरे साथी पहले ही इस जगह पर घात लगाकर बैठ गए थे। जानगरे इन दिनों बंदरगाह के मामलात की निगरानी कर रहा है।